Good morning students. Today we are going to study genetics, that is principle of inheritance and variations. Genetics. What is genetics? Branch of science which deals with the study of heredity and variation is termed as genetics, or we can also say that collective study of heredity and variations. वो ब्रांच साइंस की जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में स्टडी करेंगे उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स. It is derived from a Greek language word genesis, which means growth or to grow or the generation process. The term genetics was given by Batson. You must have wondered that why do we look similar to our parents, or why do we look similar to our sisters or brothers? That's what we are going to learn about in this chapter. It's generally seen that some of our features resemble to our mother, some of our features resemble to our father, but it's not necessary that all our features have to match with either mom or dad. We even see some new features which is not present in our mom or dad. So you may conclude that you also receive some characters from ancestors, from grandfathers, or from our great grandfathers. Here you can see a family, a couple and their two kids. As you can see that first kid has brown hairs and second has black hairs. So we can conclude that first kid has received characters of brown hair from his mother. Similarly, second kid received character of black hair from his father. That shows similarity of characters between two generations, or in short we can say that it's heredity. That is passing of characters from one generation to the next generation. Now the second difference you may notice is the eye color. As you can see that first kid has received blue eye color and none of the parent have blue eyes. That's a new character appear in the generation which may resemble to their ancestors or the father, grandparents or the great grandparents. So we can say that the modified define of heredity, the passing of traits from parents or the ancestors to the offsprings. So what we have learned from the above picture? We have learned about heredity and variation, some similarities of the characters and some differences between the related individuals, and these both aspects are respectively termed as heredity and variation. तो जो करेक्टर सिमिलर होंगे पेरेंट से, जहाँ हम सिमिलैरिटी की बात करेंगे वहाँ पे उस एस्पेक्ट को हम लिखेंगे हेरिडिटी, और जहाँ हम डिफरेंसेस की बात करें इंडिविजुअल्स के बीच में, एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ जो डिफरेंसेस की बात हो रही है वो जो है एक सेम स्पीसीज के मेंबर्स हैं उनके बीच में बात हो रही है, तो वहाँ पे हम लिख देंगे वेरिएशंस. अब हम कुछ बेसिक टर्म्स की बात करेंगे जो जेनेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और इस जेनेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें इन टर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है. So students, summing up, genetics, it's the collective study of heredity and variation. And one thing which was left, that is the father of genetics. Who is the father of genetics? It's Mendel. Father of modern genetics, that's Batson, and he also gave the terms like homozygous, heterozygous and alleles. These terms I will explain later on. And now who is the father of experimental genetics? That is Morgan, and the experimental material was Drosophila, and he also proposes some concepts like linkage, crossing over and crisscross inheritance. These concepts are also explained later on in the chapter. नेक्स्ट हेरिडिटी, ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन. जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टर्स ट्रांसफ़र होंगे या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो करेक्टर्स जा रहे हैं उसको हम बोलेंगे हेरिडिटी. नेक्स्ट वन इज़ इनहेरिटेंस. देखो जो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस वर्ड है ये दोनों एक साथ एक जैसे ही माने जाते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस है. इनहेरिटेंस क्या है? दिस इज़ द पैटर्न ऑफ हेरिडिटी, यानी कि इस वे में जो करेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस. यानी जो पूरी प्रोसेस आप स्टडी करोगे ना कि करेक्टर्स कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो आ जाएगा इनहेरिटेंस के अंदर. नेक्स्ट वन इज़ वेरिएशंस. जैसे कि हमने उस पिक्चर में बात की थी कि जो डिफरेंसेस है ऑफस्प्रिंग के पेरेंट से और रिलेटेड इंडिविजुअल से सेम स्पीसीज की, यानी डिफरेंसेस ऑफ ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स और रिलेटेड individuals of same species is termed as variations.
अब जो वेरिएशंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सोमैटिक और जर्मिनल। जो सोमैटिक वेरिएशंस हैं वो होते हैं सोमैटिक सेल्स में, और वो नॉन इनहेरिटेबल है, वो इनहेरिट नहीं हो गए। वो जो वेरिएशंस हैं वो एक पर्सन खुद अडेप्ट करेगा। और जो जर्माइनल वेरिएशंस है वो जर्म सेल्स में होंगे और वो इनहेरिटेबल होंगे, यानी कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास डाउन होंगे। अब जो ये जर्माइनल वेरिएशंस होते हैं ये भी टू टाइप्स के हैं, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस। जो कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस है इट अकर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, एंड द डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन इट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशंस। क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और वैसे भी आपने क्रॉसिंग ओवर के बारे में थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो 11th में लिया हुआ है सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूस वेरिएशन में जैसे कि वेरिएशन हो जाना अपीयरेंस में, शेप में, साइज में, नंबर में, तो ये सब जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये आ जाएंगे कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस के अंदर। और डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस में आ जाएंगे जैसे कि शॉर्ट फिंगर, जॉइंट फिंगर, या मोर देन 5 फिंगर्स, यानी कि कुछ अलग बन जाना। म्यूटेशन एग्जैक्टली होता क्या है कि एक सडन करेक्टर का अपीयर हो जाना, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन, यानी डिफरेंट फ्रॉम original or different from previous, that is mutation. Okay, next term which we are going to study is character. In genetics the morphological and physiological expression of organism is called character. that is जो external appearance होगा organism का उसको हम बोलेंगे character. For example plant की height, flower color, shape of seed, color of pod, shape of pod, color of flower, flower position, etc. तो ये सब चीज़ें क्या है, ये characters हैं। नेक्स्ट जो है हमारी डिफाइन वो आएगी ट्रेट की। अब जो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं करेक्टर्स के, या जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक करेक्टर के, उसको हम बोलेंगे ट्रेट। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने अभी करेक्टर की बात की, प्लांट हाइट, तो प्लांट हाइट एक करेक्टर है, लेकिन इसके दो ट्रेट्स हैं, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। ड्वार्फनेस यानी कि शॉर्ट प्लांट। तो ट्रेट क्या होते हैं कि जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं करेक्टर के वो होते हैं ट्रेट। Now, next we are going to study about gene. Now, what are genes? These are the unit of heredity which is responsible for inheritance and appearance of a character. इसे हम functional unit of heredity material भी बोलते हैं, basic unit of inheritance भी बोलते हैं। ये smallest unit है क्रोमोसोम की जो रेगुलेट करती है करेक्टर्स को और ट्रेट्स को, यानी कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके जितने भी बायोलॉजिकल करेक्टर्स हैं वो कौन डिटरमाइन करेगा, जीन्स। क्योंकि ये जो जीन है ये ट्रांसफ़र होएगी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जीन टर्म जो है ये जो हांसन ने दिया था, और मेंडल ने जो टर्म यूज़ की थी जीन के लिए वो था फैक्टर और एलिमेंट। फैक्टर और एलिमेंट का मतलब भी जीन ही है, लेकिन जो टर्म मेंडल ने यूज़ की थी वो क्या था, फैक्टर। यानी मेंडल ने बोला था कि कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ इनहेरिटेड फैक्टर्स हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपीयरेंस ऑफ करेक्टर्स के लिए, बायोलॉजिकल करेक्टर्स के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के। ओके, नाउ द मॉर्गन, ही वॉज द फर्स्ट हु यूज्ड सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट द फैक्टर। आपको पता होगा हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि प्लांट हाइट हमने एक करेक्टर लिया जिसके हमने दो ट्रेट्स लिए, टॉल और ड्वार्फ प्लांट। तो जो मॉर्गन थे उन्होंने क्या किया, फैक्टर्स के लिए पहली बार सिंबल यूज़ किया था। डोमिनेंट फैक्टर्स जो थे उनको उन्होंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जांपल टॉलनेस के लिए मैंने यूज़ किया कैपिटल टी, और जो रिसेसिव फैक्टर था उसको यूज़ किया, उसको रिप्रेजेंट किया स्मॉल लेटर से, स्मॉल टी, यानी कि स्मॉल टी क्या डिनोट कर रहा है, ड्वार्फनेस। अब हम थोड़ा सा जीन के बारे में और बात करते हैं कि जीन का क्या मेन रोल है, क्या फंक्शन है। जो ट्रांसफर्स है उसको तो करेक्टर्स है उसको तो ये ट्रांसफ़र करता ही है, लेकिन ये क्या करेगा, रिकम्बिनेशन को भी रेगुलेट करता है, म्यूटेशन को भी रेगुलेट करता है, एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेसिकली जो जीन्स होते हैं उसकी 3 सब यूनिट्स होती हैं, सिस्ट्रॉन, रेकॉन एंड म्यूटॉन। जो सिस्ट्रॉन है इट्स द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन विच रेगुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस। Recon, it's responsible for the recombination. It's the recombination site of a gene where recombination will take place. And muton, it's the mutable site of a gene. Site of chromosome where genes are present is termed as locus.
नाउ सी, मैंने एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनाई है और उस पे मैंने मेंशन किया है ABCDEFGH। तो ये क्या मैंने मेंशन किया है, ये मैंने जीन्स रिप्रेजेंट किए यहाँ पे। और जो एक पर्टिकुलर जीन है जो मैंने ए के नीचे मार्क किया है, सिंगल एक एक की साइड की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे लोकस, और कंप्लीट की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे लोकाई। तो लोकस या लोकाई क्या होते हैं? अ साइट ऑफ क्रोमोसोम वेयर जीन्स आर present. Now next term, that is alleles, the alternative form of genes which are located on same position yani ki loci, same locus on the homologous chromosome is called allele. Now what is this homologous chromosome? Let's study. होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? इफ क्रोमोसोम कंटेन आइडेंटिकल लोकस, यानी दो क्रोमोसोम जैसे कि मैंने बनाए हैं, दोनों के अंदर देखिए जीन्स ABCDEF दोनों क्रोमोसोम में सेम है, यानी कि आइडेंटिकल लोकस है, बिल्कुल सेम पोजीशन है। ये नेसेसरी नहीं है कि जो दोनों जो जीन्स हैं ए और ए अलग अलग क्रोमोसोम पे दोनों सेम ही क्वांटिटी में कंट्रोल करें किसी कैरेक्टर को, यानी कि दोनों ही जीन्स मान लीजिए आई कलर के लिए हैं, ठीक है, तो जो ए है वो ब्राउन आई कलर के लिए हो सकता है एक क्रोमोसोम में, और सेकंड के अंदर ब्लैक आई कलर के लिए भी हो सकता है, ठीक है, और इनका रेशियो भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों ही जीन्स क्या कंट्रोल कर रहे हैं? आई कलर। नेक्स्ट, heterologous chromosome, if chromosome contain different locus. Now see, both the chromosome contain different genes, both controlling different characters, so these kind of chromosome will be termed as heterologous chromosomes. Now coming back to the allele, pair of genes showing or which regulate contrasting character. Contrasting character मान लीजिए हम ले रहे हैं प्लांट हाइट, जिसके अंदर दो आगे जीन्स दो ट्रेड्स प्रेजेंट है, दैट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव, और वो है डोमिनेंस जो है वो है प्लांट की टॉलनेस का, और जो रिसेसिव करेक्टर है वो है प्लांट की ड्वार्फनेस का। तो जो कैपिटल टी और जो स्मॉल टी है ये दोनों क्या है? अलील्स हैं एक ही करेक्टर के, दैट इज प्लांट हाइट। देखो ये दो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम जिसमें कैपिटल टी मैंने मार्क किया है और एक लोकस दिखाया है, यानी कि आइडेंटिकल पोजीशन, सेम पोजीशन पे जीन्स प्रेजेंट हैं, और ये दोनों क्या कंट्रोल कर रहे हैं? प्लांट की हाइट को। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है वो क्या है? एक अलील है, ओके, जो कंट्रोल करेंगे प्लांट की हाइट को। नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं होमोजाइगस। A zygote is formed by the fusion of two gametes having identical factors, यानी एक जायगोट जो बना दो गैमेट्स के फ्यूजन से जिनमें आइडेंटिकल फैक्टर्स थे, इसको हम बोलेंगे होमोजाइगोट। और ऑर्गेनिज्म जो डेवलप होगा इस जायगोट से उसको हम बोलेंगे होमोजाइगोस, यानी इसको एक और शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, डिप्लॉयड सेल कंटेन टू सेम अलील फॉर अ करेक्टर। एक डिप्लॉयड सेल है जिसके अंदर दो सेम अलील हैं फॉर अ पर्टिकुलर करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, देखिए ये दोनों आइडेंटिकल फैक्टर्स हैं और ये दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टॉलनेस के लिए, प्लांट हाइट का, जो हमने एक ट्रेट लिया है। नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं हेट्रोजाइगस। Diploid cell contain two different alleles for a character, that is termed as heterozygous। और आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, a zygote is formed by fusion of two different types of gamete carrying different factors is called heterozygote, and the individual developed from such zygote is called heterozygous। और जो ये टर्म्स हैं होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, ये भी बैटसन ने दी थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। नेक्स्ट है हेमीजाइगस। इन डिप्लॉयड सेल सिंगल एलील प्रेजेंट फॉर अ करेक्टर इज कॉल्ड हेमीजाइगस, यानी एक डिप्लॉयड सेल के अंदर अगर एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही एलील प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेमीजाइगस। नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ अ करेक्टर, यानी बाहर से देखने में कैसा है वो करेक्टर, इसको हम बोलेंगे फिनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल capital T and small t, both these control the tallness of a plant। okay, next हम स्टडी कर रहे हैं जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होता है ये आपने पहले भी स्टडी किया हुआ है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर करेक्टर, यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसकी कंपोजिशन, जीनोटाइप। फॉर एग्जांपल नीचे देखिए लिखा गया है कैपिटल टी, सेकेंड लिखा हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड थर्ड लिखा हुआ है स्मॉल टी। तो फिनोटिपिकली अगर हम बात करें
तो कैपिटल टी क्या होगा, टॉल, और कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या होगा, टॉल। लेकिन जो स्मॉल टी है उसको हम क्या बोलेंगे, ड्वार्फ या शॉर्ट प्लांट। लेकिन अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो कैपिटल टी क्या हमें डिनोट करेगा कि वो जो प्लांट है वो प्योर टॉल है। ओके, और सेकेंडली कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या शो करेगा, दैट कि वो पर्टिकुलर प्लांट क्या है, हाइब्रिड टॉल है। और थर्ड स्मॉल टी क्या शो करेगा, प्योर ड्वार्फ को। तो जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी प्लांट का उसको हम क्या शो कर कैसे बताएंगे, जीनोटाइप। Next is hybrid vigor or heterosis. The superiority of offsprings over its parents is called hybrid vigor. For example, मान लीजिए कि एक पेरेंट है कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C and another parent is small a, small b, स्मॉल c। तो हम क्रॉस करवा रहे हैं तो हमें एक हाइब्रिड मिल रहा है। तो ये जो हाइब्रिड होगा वो अपने पेरेंट से भी ज़्यादा सुपीरियर होगा, तो इसको बोलेंगे हाइब्रिड विगर। नेक्स्ट देखिए आप, अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में आपने ऑलरेडी स्टडी किया है यूनिट 1 में। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, अगर आप क्रॉस पॉलिनेशन करवाओगे तो हिट्रोजाइगोसिटी है जो है वो बढ़ेगी, हाइब्रिड विगर बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन करवाते रहोगे या इनब्रीडिंग करवाओगे तो हिट्रोजाइगोसिटी कम होगी, हाइब्रिड विगर कम होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशंस आ जाएंगे। नेक्स्ट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। When only one allelic pair is considered in cross breeding, that is termed as monohybrid cross। यानी कि जब हम क्रॉस करवाएंगे सिर्फ एक ही अलीलिक पेयर को कंसीडर करेंगे, यानी एक ही अलीलिक पेयर को लेके करवा रहे हैं, उस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ वन करेक्टर एट अ टाइम इज टर्म्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डिटेल्स जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जब हम पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे वहां पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। व्हेन टू एलीलिक पेयर्स आर यूज्ड फॉर क्रॉसिंग, दैट इज टर्म्ड एज डाइहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि जब हम दो एलीलिक पेयर्स को लेके चल रहे हैं, दो करेक्टर्स को लेके चल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट वन इज F1 जनरेशन और फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये वो जनरेशन है हाइब्रिड्स की दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन द जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स कॉल्ड पेरेंट्स। तो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स जिसे हम पेरेंट्स बोल रहे हैं उन्हें हम लेके और क्रॉस करवा रहे हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी हाइब्रिड्स की उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट फीलियल जनरेशन और F1 जनरेशन। Now next is F2 generation or second filial generation, the generation of individuals which arises as a result of inbreeding or interbreeding among individuals of F1 generation। जब F1 generation के individuals के बीच में breeding करवाई जाएगी that is termed as F2 generations। देखिए जो इसकी डिटेल्स है वो हम सब जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पे करेंगे, अभी हम सिर्फ डिफाइन लेके चल रहे हैं और इसके बारे में जनरल आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। Next one is Punnett square. It is a checkerboard method which is used to show the result of a cross। एक क्रॉस का जो रिजल्ट है उसको हम एक चेकरबोर्ड मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और इसे हम क्या बोलेंगे, पुनेट स्क्वायर। इट वॉज डिवाइज्ड बाय, इसको एक साइंटिस्ट ने डिवाइस किया था जिनका क्या नेम है, RC पुनेट। ये आपको लर्न करना है। इट डिपिक्ट्स बोथ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी। और ये हमें क्या बताएगा, किसी भी प्रोजेनी का जीनोटाइप भी बताएगा और फिनोटाइप भी बताएगा। फिनोटाइप यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड जीनोटाइप। होप यू लाइक द कंटेंट एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मेंडलिज्म।